Okay, so we said one class can inherit another class, and the main objective of inheritance is that we want the functionalities of any parent class to be directly used in the child class instead of redefining the same parameters and redefining the same member functions. So सर just to स्क्रीन शेयर have ऑन that नहीं सर. functionality, जी, सर स्क्रीन शेयर ऑन नहीं. अच्छा, सर so just to विजिबल है. have that function, हाँ, ये सर जी, आप विजिबल हो. अच्छा, good. So to have that functionality, we basically do not want to duplicate our code. ठीक है? So in order to avoid duplication, हमारे पास जो दूसरा रास्ता है, that is to allow one class to be inherited by another, and in that way we are allowing access to the child class for all the public and protected data members and member functions of the parent class. So that is the main. In fact, we can access the private members also, but indirectly. So that is how, or that is why we need to define, we need to define the parent-child relationship between classes. ठीक है? Last time हमने उसकी theoretical details discuss की कि a class can be inherited by multiple classes, a class can inherit from multiple classes, and we can have multiple levels of inheritance. ठीक है? So let's just code it. Basically classes की coding हमने already उसका एक session किया हुआ था. So there isn't much of a difference because we still have to define classes, but the only difference is that when we define two classes, we have to define this particular relationship of parent child between those classes. तो उस चीज पे हमारा ज्यादा फोकस होगा इस लेक्चर में. So let's say right. So let's say we have this skeleton, and we'll define a couple of classes. So पहली क्लास जो है हमारी, लेट्स नेम इट एज पेरेंट. ठीक है? और सुपर क्लास, ये हम ये टर्म्स उसको रेफर करने के लिए यूज करते हैं. सो इट कैन बी नेम्ड एनीथिंग. लेट्स स्टार्ट विद दीज नेम्स. हम पेरेंट क्लास को सुपर क्लास कहते हैं, पेरेंट क्लास उसको कहते हैं, या उसको जो है इस तरह के, और जो चाइल्ड क्लास है उसको या बेस क्लास कहते हैं. जो चाइल्ड क्लास है उसको चाइल्ड डिराइव्ड या इस तरह के या सब क्लास जो है, ये नाम हम उसके लिए यूज करते हैं फॉर अ क्लास दैट इज इनहेरिटिंग. ठीक है? सो हमने एक क्लास डिफाइन किया है, वी कॉल्ड इट सुपर क्लास, and let's say this class has a private data member which is of type integer and its name is I. ठीक हो गया? This class has a public method, and this class, and that has a name of, let's say, um, we have this function or method. It doesn't take anything in argument, and it just prints that this function is in class A. Okay. And now we'll define another class. We'll name it as subclass. And by convention, we generally keep the first character as capital. अगर आप ये नहीं करेंगे आपको error नहीं मिलेगा, but this is just good programming practice के. जिस तरह से हम function में हमेशा पहला character small रखते हैं, object के नाम में small रखते हैं, इस तरह से class के नाम में पहला character जो है that should always be capital. And if you have a name that is comprised of multiple words, so you can combine them with camel notation, like सब क्लास. अगर इसका ये ऐसे होता तो हम इस तरह भी से भी इसको लिख सकते हैं, यानी द सेकंड पार्ट मस्ट हैव द फर्स्ट कैरेक्टर एज कैपिटल. सो इस तरह से हम क्लासेस को नेम करते हैं.
And let's say this also has a private data member that is int j, and then we have a public method that is func b. This is a function of class b, और यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि cout function of class b. So we have defined these two separate classes. एक को हमने सुपर क्लास कह दिया, दूसरे को जो है हम इसको थोड़ा सा मीनिंगफुल क्लासेस में कन्वर्ट करेंगे, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जांपल हमने उसको इसी तरह से नाम किया हुआ है. एक को हमने सुपर क्लास कह दिया, एक को सब क्लास कह दिया. The super class has a parameter, has a data member I which is private, and it has a member function which is public. उसका नाम है func a, उसको कुछ पास नहीं हो रहा, and it's just displaying the statement that this function is part of class A. Sub class में ये हमारे पास एक private data member है named as j, and we have a public function func b which prints that this is the function of class B. अब इनको हमने सुपर और सब तो नाम किया हुआ है, लेकिन इनके बीच में पेरेंट चाइल्ड की रिलेशनशिप नहीं है, बिकॉज वी हैव जस्ट क्रिएटेड दीज क्लासेस द वे वी वुड हैव क्रिएटेड एनी अदर क्लास. ठीक है, तो अभी तक हमने वो पेरेंट चाइल्ड वाला जो रिलेशनशिप है वो उनके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं किया. सो फॉर दैट द ओनली थिंग दैट वी ऐड इज अ कॉलन. ठीक है, एंड आफ्टर द नेम ऑफ द कॉलन यू कैन बेसिकली मेंशन द नेम ऑफ इट्स पेरेंट्स. ठीक है, सो इफ वी राइट ओवर हियर super, so just by adding this colon and super, now this subclass is a child of the class super. Okay, this is all that we have to add in order to introduce a parent child relationship between these two. अगर हम ये ना करते तो ये दोनों independent classes होती, दोनों classes को हम use कर सकते थे, उनके objects बना सकते हैं, लेकिन ये आपस में एक दूसरे के resources को use नहीं कर सकते. But now just by adding these this colon and name of the parent class, now subclass can have access to j, it can have access to function b which are its direct members, and then it can also have access to function a, and it can also have access to I. ठीक है, क्योंकि they are part of the parent class, and we said that a child class can have access to everything that is defined in the parent class. ठीक है सर, वो एक्सेप्ट कर ले. अच्छा, इसमें थोड़ी सी चीजें हैं जो टाइम के साथ हम डिस्कस करेंगे. मसलन ये क्लास जो है, ये सब क्लास का जो चाइल्ड होगा, इट कैन डायरेक्टली एक्सेस दिस जे. ये जो हमारी शुरू से प्रैक्टिस आ रही है कि आप क्लास के अंदर से प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, तो ये जो आई है सब क्लास का ऑब्जेक्ट जो है उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, बट ऑब्वियसली इट कैन एक्सेस इट इनडायरेक्टली. तो अभी इनडायरेक्ट एक्सेस के लिए हमारे पास कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन इट डजंट मीन के आई जो है इट्स नॉट पार्ट ऑफ सब. जब ये सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, यहाँ पे अगर हम क्लास बनाएं, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाएं, सुपर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएं, लेट्स से S1 के नाम से. ठीक हो गया, तो S1 के अंदर क्या होगा, S1 का जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर एक डेटा मेंबर होगा I, और एक इसके अंदर मेंबर फंक्शन होगा func A. ये दो चीजें ये एक्सेस कर सकता है. जब हम सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, तो सब क्लास का जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर दो डेटा मेंबर होंगे, एक I और एक J, और ये दो फंक्शंस कॉल कर सकता है, एक func A और एक func B. तो ये जो सब क्लास है जो पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है, ये अपने डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को भी कॉल कर सकता है, और पेरेंट वालों को भी अपने पेरेंट के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को भी एक्सेस कर सकता है. अब ये सर, बच्चे आए हैं उनको वो कर लें सर. जी सर, वो बच्चे आए हैं उनको उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें. अच्छा, अच्छा, तो ये मैं आपको बता रहा था कि I जो है इट कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सेस्ड विद दिस ऑब्जेक्ट SB1 जो सब का ऑब्जेक्ट है. सब क्लास का जो ऑब्जेक्ट है SB1, इसके साथ हम डायरेक्टली I को एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन I इज पार्ट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट जो है ये कितनी मेमोरी लेगा, ये दो इंटीजर्स के बराबर की मेमोरी लेगा, क्योंकि ये भी इसका हिस्सा है और ये भी इसका हिस्सा है. तो इट कंफर्म्स के I जो है दैट इज पार्ट ऑफ द सब क्लास. लेकिन ये जो सब क्लास का ऑब्जेक्ट है SB1, ये J को तो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, लेकिन ये जो डेटा मेंबर है इसका I
ये इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर डिफाइंड है, सो दैट्स व्हाई हम इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, यानी ये अगर एक फंक्शन है, लेट्स जस्ट नॉट इंट्रोड्यूस दैट एट दिस लेवल, हम इसको फिलहाल रन करते हैं, लेट्स सी हाउ थिंग्स ऑपरेट। ठीक है, अच्छा हमने ऑब्जेक्ट्स बनाया है, फिलहाल हम इस पे कोई मेंबर फंक्शंस कॉल नहीं कर रहे, सो लेट्स हैव अ कॉल टू दीज मेंबर फंक्शंस। सुपर s1 sorry s1 dot func a, sb1 dot func a, func b। ठीक है, हमने सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ सुपर क्लास का फंक्शन कॉल कर लिया और सब क्लास के साथ सब का फंक्शन कॉल कर दिया, और इसको हम कर देते हैं सुपर और इसको कर देते हैं सब। तो सुपर के ऑब्जेक्ट के साथ सुपर का फंक्शन कॉल किया, सब के फंक्शन के साथ सब का ऑब्जेक्ट के साथ सब का फंक्शन कॉल किया, एंड दे बोथ हैव एक्सेस टू देयर मेंबर फंक्शंस, और यहां तक चीजें जो हैं दे आर वर्किंग फाइन। नाउ इन ऑर्डर टू सी हाउ इनहेरिटेंस वर्क्स, सबके साथ फंक्शन वन तो हम कॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सबके साथ SB1 के साथ फंक्शन ए कॉल करेंगे सो स्टिल इट शुड वर्क। ठीक है, ये मैं इस पर्टिकुलर चीज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। ठीक है, कि इसके बाद जो है हम सुपर क्लास का जो फंक्शन है ये वाला, ये हम एक्सेस कर रहे हैं विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द सब क्लास। तो अगर इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप इनके बीच में ना हो तो ये हमें एरर देगा, अदरवाइज इट विल वर्क। सर जी वो एक बच्चे को अलाउ कर दे सर, हाँ वो एक लड़का है उसको अलाउ कर दे सर। अच्छा, अच्छा इट्स नॉट एक्सेसिबल। सो हमने यहाँ पे इसका रिलेशनशिप जो है मे बी इट्स बिकॉज ऑफ दिस विल कीप इट पब्लिक। इनवैलिड टाइप डिक्लेरेशन, अच्छा ये देखते हैं कहीं पे कोई ब्रैकेट वगैरह तो नहीं है ज़्यादा। अच्छा अपेरेंटली तो मुझे कोई मसला नहीं लग रहा कोड में, इसको हम क्लियर कर लेते हैं लॉक को और दोबारा देखते हैं कि अच्छा हम यहाँ पे चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ पेरेंट क्लास का फंक्शन कॉल कर रहे हैं एंड इट शुड वर्क फाइन। अच्छा इट्स केप्ट स्मॉल। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है जस्ट टू डिफरेंशिएट, ये वाली जो हमने यहाँ पे ये डैश लाइन ड्रॉ की है उसके नीचे आप देखें, सो वी हैव एक्सेस टू द फंक्शन दैट इज इन सुपर क्लास, और उसको हम एक्सेस कर रहे हैं थ्रू एन ऑब्जेक्ट ऑफ द चाइल्ड क्लास। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी मीन बाय द पेरेंट।
हमारे पास ये जो चाइल्ड क्लास है ये वाला SB1 which is a class which is an object of the सब क्लास, वो एक्सेस कर रहा है पेरेंट क्लास के फंक्शन को। वो आई को भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन एज वी सेड कि वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, उस पर हम थोड़ी देर में आते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पे है कि ये जो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है पेरेंट और चाइल्ड का, इसकी एक जो है टाइप भी है कि रिलेशनशिप की जो टाइप है वो क्या है। एंड अगेन वी हैव थ्री टाइप, जस्ट लाइक वी हैव थ्री different types of access specified, the same we can use for the parent child relationship also, कि ये जो चाइल्ड है सब ये पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है एज पब्लिक। ठीक है, हमारे पास प्रोटेक्टेड एज प्रोटेक्टेड भी आप कर सकते हैं और एज प्राइवेट भी कर सकते हैं। और इनके बीच में जो डिफरेंस है दैट इज बेसिकली हाउ यू आर डीलिंग द शेयरिंग ऑफ डेटा बिटवीन टू क्लासेस, कि आप उसके बीच में कितनी प्राइवेसी रखना चाहते हैं। जितना आप हाई लेवल वो यूज करेंगे सिक्योरिटी का, उतना आपको ज्यादा जो है रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिलेगी और उसको आपको इनडायरेक्टली एक्सेस करना पड़ेगा। सो लेट्स जस्ट नॉट गेट इनटू दैट एट दिस लेवल, बट फिलहाल हम जो भी इनहेरिटेंस यूज करेंगे वी आर गोइंग टू यूज इट विद पब्लिक टाइप। ठीक है, पब्लिक मींस के ये जो यहाँ पे जो चीज जिस तरह से डिफाइंड है वो उसी तरह से चाइल्ड क्लास का पार्ट बनेगी। हमने कहा कि पेरेंट क्लास के अंदर जो कुछ है दैट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द चाइल्ड क्लास जब हम उसके अंदर इनहेरिटेंस को यूज करेंगे। ठीक है, तो जब हम उन दोनों की रिलेशनशिप को जब इन दोनों के रिलेशनशिप को हम पब्लिक डिफाइन करेंगे, सो दैट मींस कि यहाँ पे जो प्राइवेट है दैट इज गोइंग टू बी प्राइवेट फॉर द सब क्लास आल्सो, द पब्लिक इज गोइंग टू बी पब्लिक एंड द प्रोटेक्टेड इज गोइंग टू बी यूज्ड एज प्रोटेक्टेड। ठीक हो गया? ठीक है जी? यस सर। अच्छा, एक और चीज जो है कि हमारे पास ये एक चीज हो सकती है कि पेरेंट और चाइल्ड के बीच में एक ही फंक्शन डिफाइन हो, यानी एक ही नाम के फंक्शंस डिफाइन हो, जिसको हम कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, ओवरलोडिंग का नाम आपने पहले सुना हुआ था, वेयर वी हैव द सेम नेम फॉर द फंक्शन, लेकिन उनके बीच में फर्क क्या होता है कि जो पैरामीटर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, बट वी मे ऑल्सो हैव अ केस ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग का मतलब ये है कि दोनों फंक्शंस एग्जैक्टली एक जैसे होंगे, नाम भी एक जैसा होगा और उसकी जो पैरामीटर्स उनको पास हो रहे हैं वो भी एक जैसे होंगे, बट दे आर गोइंग टू बी डिफाइंड इन डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से आई नेम दिस क्लास इज डिस्प्ले, सो डिस्प्ले इज गोइंग टू डिस्प्ले क्लास सुपर। ठीक है, और ये भी मेरे पास डिस्प्ले है और यहाँ पे ये डिस्प्ले क्या कर रहा है, ये सब क्लास को डिस्प्ले कर रहा है। तो हमारे पास दो क्लासेस के अंदर अपनी अपनी डिस्प्ले है और दोनों क्लासेस जो हैं, दोनों फंक्शंस वो अपने फंक्शंस को डिस्प्ले करेंगे। अब अगर मैं S1 के साथ डिस्प्ले कॉल करूं, सो इट्स गोइंग टू अंडरस्टैंड कि ये जो है S1 के ऑब्जेक्ट से ये समझ जाएगा कि मैंने सुपर क्लास वाला डिस्प्ले कॉल करना है। अगर इसके साथ मैं डिस्प्ले कॉल करूं, सो ये क्लास की टाइप से समझ जाएगा कि मैंने सब क्लास वाला अच्छा सॉरी विद सब क्लास। अगर इनके बीच में पेरेंट चाइल्ड की रिलेशनशिप नहीं है तो फिर ये इसके लिए अंडरस्टूड है कि इट्स गोइंग टू एक्सेस द चाइल्ड क्लास। ठीक है, द मेंबर फंक्शन ऑफ द चाइल्ड क्लास। तो अगर हमने रिलेशनशिप डिफाइन की हुई है, सो इन दैट केस इफ हम इसको भी एक्सेस कर सकते हैं, द डिस्प्ले क्लास ऑफ द फंक्शन ऑफ द पेरेंट, बट देयर वी नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा और वो हम इसके बाद इंट्रोड्यूस करेंगे। सो ये नीचे वाला पोर्शन जो है इसको फिलहाल निकाल देते हैं और अब हम पेरेंट के साथ भी डिस्प्ले कॉल करें और चाइल्ड के साथ भी। ठीक है, सो पेरेंट के साथ पेरेंट का डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो गया और चाइल्ड के साथ चाइल्ड का डिस्प्ले कॉल हो गया। बट वी सेड कि सिंस दिस चाइल्ड इज इनहेरिटिंग द पेरेंट क्लास, सो हम इसके साथ पेरेंट का पेरेंट का जो सुपर क्लास है, जो फंक्शन है यहाँ पे डिस्प्ले का, वो भी कॉल कर सकते हैं। सो फॉर दैट अगर हम यहाँ पे ये ऐड कर दें चाइल्ड क्लास के अंदर सुपर और ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो हम पहले भी यूज करते रहे हैं, वी आर कॉलिंग दिस फंक्शन विद द क्लास नेम। ठीक है, और हम यहाँ पे डिस्प्ले कॉल कर लेंगे। सो अब हम कर क्या रहे हैं कि ये जो है ये चाइल्ड क्लास के अंदर हमें एक्सेस अलाउ कर रहा है कि हम पेरेंट क्लास के डिस्प्ले को कॉल करें, और हमें पता कैसे चले कि ये कौन सा डिस्प्ले है, हम उसके साथ क्लास का नाम यूज कर रहे हैं। सो बेसिकली वी आर लेटिंग द कंपाइलर नो कि
यहाँ पे पेरेंट के अंदर जाओ और पेरेंट के अंदर जो डिस्प्ले वाला फंक्शन है वो कॉल करो। तो अब यहाँ पे हमारे पास दोनों चीजें, अगर हम ये दूसरी डिस्प्ले फंक्शन निकाल लें चाइल्ड वाली पेरेंट वाली, इसको मैं पहले कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। So we are just calling the member function of the child class with an object of the child class which is named as sb1. लेकिन अगर हम यहाँ से ये comment हटा दें, so just with the object of the child class we can have access to the display functions of both the classes, और वो हम यहाँ पे अब अगर आप रन करें तो आप देखें कि just with that one call of the child class we have access to the display of the parent class and that of the child class. तो हमने दोनों चीजों को डिस्प्ले कर दिया है because they are all part of the child class, ठीक है। यस सर। सर ये हम पेरेंट के साथ पब्लिक क्यों लिखते हैं? क्यों लिखते हैं? यस सर, प्राइवेट वगैरह लिख। हाँ हाँ, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन इस पे दोबारा जो है इस पे दोबारा बात कर लेते हैं, ठीक है। असल में बेसिकली ये है कि आप जितना रिलेशनशिप टाइप के लिए रिस्ट्रिक्टेड टाइप यूज करेंगे उतना आपको डायरेक्ट एक्सेस जो है वो मुश्किल हो जाएगी। हम जब डायरेक्ट एक्सेस को मुश्किल करते हैं उससे ये होता है कि हमें फिर मेंबर फंक्शंस डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। आप ऐसे देख लें कि इफ वी हैव गॉट अ मेंबर ऑफ अ क्लास ऑफ अ पेरेंट क्लास जो पब्लिक है, अगर हमने इस रिलेशनशिप की टाइप को प्राइवेट कर दिया, ठीक है, तो अब ये डिस्प्ले फंक्शन जो है ये पार्ट है इस क्लास का, लेकिन ये अब एज पब्लिक नहीं आएगा, ऑल्दो इट इज डिफाइंड एज पब्लिक और हियर पेरेंट के अंदर ये एज पब्लिक डिफाइंड है, लेकिन अब ये मेंबर फंक्शन जो है ये इस क्लास का मेंबर हो गया एज प्रोटेक्टेड, बिकॉज प्रोटेक्टेड हैज हायर सिक्योरिटी एज कंपेयर टू प्राइवेट। तो ये यहाँ पे पब्लिक, सो यहाँ पे ये फंक्शन जो है ये इसका मेंबर होगा, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा होगा कि जैसे ये फंक्शन यहाँ पे प्रोटेक्टेड के एक्स स्पेसिफायर के नीचे डिफाइंड है, ठीक है। सो फॉर दैट वी नीड टू राइट मोर फंक्शंस। सो फिलहाल हम उसको पब्लिक रख लेते हैं और बाद में देखते हैं कि इसको हम प्रोटेक्टेड और प्राइवेट करेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। यस सर। तो ओवरराइडिंग का ये आपको समझ आ गया कि हमारे पास जब मल्टीपल क्लासेस हों और उनके अंदर एक ही नाम का फंक्शन हो एग्जैक्ट सेम, उनके नाम भी सेम हो, पैरामीटर्स भी सेम हो, सो देन देयर इज नो वे टू डिफरेंशिएट बिटवीन दोस क्लासेस। लेकिन हम किस चीज से फिर डिफरेंशिएट करते हैं? बाय द टाइप ऑफ देयर ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो फंक्शन किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पे कॉल होगा, बिकॉज दे आर डिफाइंड विद इन अ फंक्शन विद इन अ क्लास। सो बाय द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट वी आइडेंटिफाई कि कौन सा फंक्शन हमने कॉल करना है, ठीक है। यस सर। अच्छा, लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू समथिंग मीनिंगफुल। और यहाँ पे हम पेरेंट्स जो है इसको कह देते हैं व्हीकल, और इसके अंदर जो है तो ये हमने एक व्हीकल के नाम से एक पेरेंट क्लास डिफाइन की है। दिस पेरेंट क्लास हैज टू प्राइवेट डेटा मेंबर्स, एक ये कि इसके अंदर टायर्स कितने हैं और दूसरा जो है कि ये कार या व्हीकल जो है ये स्टार्ट है कि नहीं।
स्टार्ट फंक्शन ये हमने डिफाइन किया यहाँ पे कि जब हम इसको कॉल करेंगे हम चेक भी कर सकते थे कि पहले से स्टार्ट है कि नहीं, बट जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल जब भी ये फंक्शन होगा हम इसकी जो वैल्यू है इफ स्टार्ट की उसको हम ट्रू कर देंगे, ठीक है। और डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको फॉल्स कर देते हैं। सो यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर देते हैं और ये जो कंस्ट्रक्टर है हमारा इसको कुछ पास नहीं करते एंड द डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर टायर्स इज 2 क्योंकि 2 से कम जो है किसी व्हीकल के हो नहीं सकते और इफ स्टार्ट जो है बाय डिफॉल्ट हम इसको फॉल्स कर देते हैं। तो ये हमारा एक पेरेंट क्लास डिफाइन हो गया जिसके अंदर 2 डेटा मेंबर्स हैं, दे आर डिफाइंड अंडर द प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर एंड वी हैव 3 मेंबर फंक्शंस, एक कंस्ट्रक्टर, 2 दूसरे मेंबर फंक्शंस, उनको हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब ये जो चाइल्ड क्लास है लेट्स से हम इसको कहते हैं ये है स्कूटर, ठीक है, एंड स्कूटर इज इनहेरिटिंग व्हीकल। तो स्कूटर जो है लेट्स से इट मे हैव सम एक्स्ट्रा डेटा मेंबर्स, ठीक है। इसको हमें स्टार्ट का मेंबर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दैट विल बी इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट। हमें टायर्स डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, अगेन दैट वुड कम फ्रॉम पेरेंट। सो इफ वी नीड एनीथिंग एल्स अदर देन दीज टू तो वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सो लेट्स से हम क्या रख लें यहाँ पे, कलर रख देते हैं, ठीक है, ओके। सो वी हैव स्ट्रिंग कलर फॉर स्कूटर, ठीक है। और इसका भी हम एक और यहाँ पे एक मेंबर फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं विद विच वी आर गोइंग टू एक्सेस इट्स कलर प्रॉपर्टी, ठीक है। सो void set color string color और मे बी जस्ट C और यहाँ पे हम इसको कह देते हैं कि कलर को C असाइन कर दें, ठीक है। सो दिस इज द मेंबर फंक्शन दैट वी हैव डिफाइंड इन दिस चाइल्ड क्लास और यहाँ पे इसको फिलहाल निकाल देते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक क्लास डिफाइन की विद द नेम व्हीकल एंड दैट व्हीकल हैज टायर्स as data member and it has the property of whether this vehicle is start or not, ठीक है। हमने उसे स्कूटर को एक्सेस को चाइल्ड बनाया, so scooter is also having going to have tires, it's also going to have this property of whether it start or not and it's also going to have access to these member functions और उसके अलावा उसने अपना एक ये data member और ये function define किया हुआ है। The same way we can inherit another class from vehicle, let's say we call it car public और इसको भी हमने व्हीकल से इनहेरिट कर दिया है एंड दिस इज द एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस कि हमें अब कार के लिए भी स्टार्ट की फंक्शनैलिटी और नंबर ऑफ टायर्स को डिस्प्ले करना, वो सारी चीजें अब हमें व्हीकल कार के लिए भी जो है डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। इफ वी नीड एनीथिंग अदर देन दैट फॉर कार तो वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सो बेसिकली वी आर डूइंग मोर वे बाय राइटिंग लेसर कोड, ठीक है। जो चीजें ऑलरेडी डिफाइंड है वो हमें बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। वी जस्ट प्रोवाइड दिस पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप और पेरेंट के अंदर जो भी चीजें डिफाइंड है दे आर ऑल मेड एक्सेसिबल टू द चाइल्ड क्लासेस, ठीक है। सो कार के अंदर अगर हम कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे डिफाइन करना चाहें, लेट्स से इंट डोर्स, कि कार के अंदर डोर्स कितने हैं, public int void set doors, ठीक है, void get doors cout, ठीक हो गया। सो ये हमने ये सारा कुछ डिफाइन कर दिया है। जनरली अगर आप इन प्रैक्टिस देखें तो पेरेंट क्लास का मेन मकसद होता है कॉमन चीजों को एक साथ डिफाइन करना एंड वी जनरली डू नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट्स फॉर द पेरेंट क्लास,
ठीक है, यानी व्हीकल का ऑब्जेक्ट बनाने से हमें कोई खास फायदा नहीं होगा, हम इंटरेस्टेड हैं कार और स्कूटर के ऑब्जेक्ट्स बनाने में। इसी तरह से अगर कोई ह्यूमंस हैं तो हम अगर एक क्लास पेरेंट क्लास डिफाइन कर दें पर्सन, और उसके नीचे हम चाइल्ड क्लासेस डिफाइन कर दें स्टाफ मेंबर, फैकल्टी, स्टूडेंट, हम फैकल्टी, स्टूडेंट और उनके ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, हम जेनेरिक पर्सन के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। So the main objective of defining their parent class person is basically to define all the common attributes and member functions of all these three different types of people, that is student, faculty and staff within a single class, ताकि हम उसको तीनों के अंदर डुप्लीकेट ना करें। तो मेन ऑब्जेक्टिव पर्सन का यही होगा कि इनकी कॉमन चीजों को वहां पे डिफाइन करें, अदरवाइज वी वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास parent. So the same applies over here also, हम vehicle के objects create करने में interested नहीं होंगे, we would be more interested in creating objects of specific classes like cars and scooters. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं क्लास बनाऊं स्कूटर का, ठीक है, so scooter is going to have access to everything that is defined within the scooter class and within the vehicle class. The same way car is going to have access to everything that is defined within the car class and within the vehicle class. तो vehicle class के अंदर जो कुछ है वो scooter को भी accessible है और car को भी accessible है. So we will just demonstrate that how it is possible. So let's say scooter के अंदर हमने ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है सेट कलर का, सॉरी एस जो स्कूटर का ऑब्जेक्ट है डॉट, आप यहां से भी देख सकते हैं कि ये सारा ये हमने जब एस के साथ डॉट लगाया व्हिच इज एस इज ऑफ टाइप स्कूटर, सो जस्ट बाय हैविंग दिस dot with S we have access to set color which is defined within the scooter class, and we also have access to these functions which are defined within the parent class. ठीक है, सो यहाँ से भी आप विजुअली देख सकते हैं कि हमें पेरेंट क्लास के फंक्शंस जो है उनकी एक्सेस भी हासिल है, हमें उनके डेटा मेंबर्स की भी एक्सेस हासिल है, बट हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते उनको बिकॉज दे आर डिफाइंड अंडर द प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। तो ये भी इस क्लास का हिस्सा है, बट हम डायरेक्टली उनको एक्सेस नहीं कर सकते, वी हैव टू एक्सेस देम थ्रू पब्लिक मेंबर फंक्शंस। ठीक है, सो लेट्स से हम यहाँ पे कहते हैं सेट कलर टू ग्रीन। ठीक है, एस डॉट टायर्स काउंट, ठीक है कि कार हमारे जो स्कूटर है इसके कार्स इसके टायर्स कितने हैं। सर डबल कोट्स में बंद। हाँ हाँ ठीक है जी, गुड। ठीक है जी, सो इट हैज प्रिंटेड 2। हमारा जो पहला फंक्शन हमने कॉल किया था सेट कलर का, उससे कलर सेट तो हो गया, लेकिन एज यू कैन सी हम उसके अंदर कुछ डिस्प्ले नहीं कर रहे। और दूसरा फंक्शन जो हमने कॉल किया तो उसने हमें बताया कि स्कूटर के जो नंबर ऑफ टायर्स हैं वो 2 हैं। अब अगर यही काम हम कार के ऑब्जेक्ट के साथ कर लें तो ये उसमें भी हमें दोनों चीजों को एक्सेस मिलेगी। ठीक है, सी डॉट, आप देखेंगे कार के अंदर हमने ये 2 फंक्शंस डिफाइन किए, गेट टूर्स, सेट टूर्स, और ये बाकी जो व्हीकल के अंदर डिफाइंड था दैट इज आल्सो एक्सेसिबल टू द ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप कार। तो इसको अगर हम कहें सेट डोर्स टू लेट्स से 4 सी डॉट गेट डोर्स, तो ये तो 2 फंक्शन वो हो गए जो कार के अंदर डायरेक्टली डिफाइंड है, बट वी कैन आल्सो हैव एक्सेस टू सी डॉट स्टार्ट जो व्हीकल के अंदर डिफाइंड है। वी कैन आल्सो हैव एक्सेस टू सी डॉट टायर्स काउंट जो व्हीकल के अंदर या पेरेंट के अंदर डिफाइंड है। सो यहां से आप देख सकते हैं कि वी कैन हैव एक्सेस टू ऑल द मेंबर फंक्शंस ऑफ द पेरेंट क्लास एज वेल एज द चाइल्ड क्लास। ठीक है, हम कार के अंदर से कार के मेंबर फंक्शंस को भी एक्सेस कर सकते हैं और व्हीकल वालों को भी कर सकते हैं। द सेम वे स्कूटर के अंदर से हम स्कूटर के मेंबर फंक्शंस को भी एक्सेस कर सकते हैं और व्हीकल वालों को भी कर सकते हैं। So now what if we want to change the number of tires? ठीक है, हमने नंबर ऑफ टायर्स को चेंज करना है तो हम 2 काम कर सकते हैं। या तो हम ये करें
कि हम ये फंक्शन पेरेंट के अंदर डिफाइन करें, तो जस्ट लाइक दिस फंक्शंस हमारे पास एक्सेस आ जाएगी चाइल्ड क्लासेस के अंदर भी, या हम ये कर सकते हैं कि चाइल्ड के अंदर उसके लिए मेंबर फंक्शन बना लें। तो दोनों काम अगर हम करें, बोथ आर एब्सोल्युटली फाइन। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे मसला क्या है कि जो हमारा ये जो कार है इसके भी ये हमें दिखा रहे हैं कि 2 टायर्स हैं। उसकी वजह यह है कि टायर्स का जो नंबर है उसको हम कहीं पे चेंज नहीं कर रहे। तो स्कूटर के लिए तो 2 टायर्स ठीक है, लेकिन कार के लिए 2 टायर्स क्यों हैं? हमें उसके लिए एक मेंबर फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि टायर्स आर डिफाइंड अंडर द प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। तो हम इसको ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। सो वी नीड टू हैव अ मेंबर फंक्शन फॉर इट। अगर वो मेंबर फंक्शन में यहाँ पे पेरेंट के अंदर डिफाइन कर दूं, व्हीकल के अंदर, तो वो फंक्शन कार के ऑब्जेक्ट को भी एक्सेसिबल होगा और स्कूटर के ऑब्जेक्ट को भी एक्सेसिबल होगा। लेकिन अगर वो फंक्शन मैं यहाँ पे कार के अंदर डिफाइन करूं तो ऑब्वियसली वो सिर्फ फिर कार के ऑब्जेक्ट को एक्सेसिबल होगा। सो इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं। लेट्स से हम उसको पेरेंट के अंदर डिफाइन कर लेते हैं। सो यहाँ पे पेरेंट के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है void set tires int t which is going to be the number of tires, और हम इसको डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। लेट्स से if t is greater than or equal to 1 and t is less than or equal to let's say 10, कि हमारे पास जो नंबर ऑफ टायर्स हैं वो 1 से कम नहीं हो सकते और 10 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो लेट्स से, और यही हमारी जो मेन पावर है जो हम चाहते हैं कि हम ये जो डेटा मेंबर्स हैं इनको डायरेक्टली एक्सेस ना करें बट रादर थ्रू मेंबर फंक्शंस करें। उसका मेन एडवांटेज यही है कि हम इस चीज को कंट्रोल कर सकें कि कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है और कौन सी नहीं है। अगर हम ये काम ना करें तो फिर तो डायरेक्टली इनको एक्सेस करने में हमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, फिर तो हम डायरेक्टली, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई करे सी डॉट टायर्स और उसकी वैल्यू 10 सेट करे या -2 करे और ये वो वैल्यू ले लें। तो और यही मसला हमें क्लासेस स्ट्रक्चर्स में आ रहा था। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग दीज मेंबर फंक्शंस इज बेसिकली टू रिस्ट्रिक्ट द टाइप ऑफ वैल्यू दैट इज एक्सेसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पैरामीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि अगर ये दोनों काम है तो क्या करो, टायर्स जो है उसकी वैल्यू, उसमें टी की वैल्यू जो है वो डाल दो, अदरवाइज एक एरर मैसेज डिस्प्ले कर दो, एल्स काउट इनवैलिड वैल्यू। ठीक हो गया। सो इट्स डिफाइंड विद इन द पेरेंट क्लास। तो अब हम दोनों के अंदर नंबर ऑफ टायर्स को चेंज कर सकते हैं। हम स्कूटर के अंदर भी ये काम कर सकते हैं और हम कार्स के अंदर भी ये काम कर सकते हैं। सो लेट्स से अगर हम यहाँ पे कहें s डॉट सेट टायर्स, और सेट टायर्स की वैल्यू हम कहते हैं कि 1 कर दो, ये स्कूटर जो है इसका सिर्फ 1 टायर होगा। ठीक है, और उसके बाद हम, अच्छा ये थोड़ा सा इसको और मीनिंगफुल बनाते हैं, जहां पे हम ये टायर्स की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे इसके साथ प्रिंट करते हैं नंबर ऑफ टायर्स। ठीक है, ताकि पता चले क्या प्रिंट हो रहा है। ठीक है, सो द नंबर ऑफ टायर्स इज 2। हमने स्कूटर के लिए उसको 1 कर दिया था, लेकिन उसके बाद हम उसको प्रिंट नहीं कर रहे। सो वो काम हम कर देते हैं कि स्कूटर का 1 टायर हमने 1 कर दिया, और अब अगर हम करें टायर्स काउंट तो अब ये हमें 1 देगा। जब हमने टायर्स स्कूटर बनाया बाय डिफॉल्ट इट हैड 2 टायर्स, देन हमने उसको टायर्स की वैल्यू को रीसेट किया 1 पे, एंड नाउ इट्स गिविंग अस अ वैल्यू ऑफ 1 के टायर स्कूटर जो है उसका 1 टायर है। एंड वी कैन डू द सेम फॉर कार आल्सो। लेट्स से हम कहते हैं कि हमारा जो कार है इट्स गोइंग टू हैव सी डॉट सेट टायर्स, और हम कहते हैं कि इसके जो टायर्स हैं वो 4 नहीं 8 होंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम सी डॉट टायर्स काउंट उसको दोबारा डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, तो इनिशियली कार है 2 टायर्स, बाद में हमने उसको मॉडिफाई करके 8 कर दिया, 4 कर दिया, whatever the value you want to set, but the point is that this function which is set
tires is basically now accessible to both scooter and car because we have defined it in the parent class. अगर इसको मैं यहाँ से उठा के, ये जो set tires का फंक्शन है, इसको मैं यहाँ से उठा के सिर्फ कार के अंदर ले जाऊं, तो अब वो कार के लिए तो काम करेगा, लेकिन अब वो स्कूटर के लिए काम नहीं करेगा क्योंकि स्कूटर जो है वो कार को इनहेरिट नहीं कर रहा. सो स्कूटर इज जस्ट इनहेरिटिंग व्हीकल, और ये फंक्शन जो है ये ना स्कूटर के अंदर है ना व्हीकल के अंदर है. सो नाउ इट्स गोइंग टू गिव अस एन एरर कि ये अननोन फंक्शन है. ठीक है. सो बेसिकली इट कैन नॉट एक्सेस व्हीकल, तो हम उसको क्या कर देते हैं यहाँ पे, ये हमने ये सेट टायर्स वाला फंक्शन जो है इसको कार के अंदर, तो कार के अंदर ले आए, तो अब ये स्कूटर के लिए काम नहीं करेगा. यहां से अगर हम इसको रन करें, अच्छा यहाँ पे एक और मसला भी है. ये जो सेट टायर का फंक्शन है ये हमने रखा हुआ है चाइल्ड के अंदर. ठीक है. और टी जो है सॉरी टायर जो है इट्स प्राइवेट मेंबर ऑफ द पेरेंट क्लास. तो ये हम यहाँ से डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ प्राइवेट डेटा मेंबर. तो ये चाइल्ड के साथ डायरेक्टली इस तरह से एक्सेस नहीं हो सकता. सो वी वुड नीड टू हैव अ फंक्शन फॉर इट इन द पेरेंट क्लास ऑल्सो. ठीक है. हम उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं थ्रू दिस, लेकिन वहां से हमें एटलीस्ट एक्सेस चाहिए इस डेटा मेंबर को. तो इसको मैं यहाँ पे एक मेंबर फंक्शन लिख देता हूं. void set tires, उसको नाम चेंज कर देते हैं. और ये जो है अच्छा वी नीड टू लिंक दिस टू, क्योंकि यहाँ से ये प्राइवेट होने की वजह से ये हमें डायरेक्ट उसको एक्सेस नहीं अलाउ कर रहा कि हम इसको मॉडिफाई करें. सो हाउ आर वी गोइंग टू गेट दिस टायर? अच्छा, सो लेट्स जस्ट राइट इट फर्स्ट एंड देन सी कि हम किस तरह से स्कूटर को ये फंक्शन अवॉइड करवा सकते हैं कि स्कूटर की एक्सेस जो है वो यहाँ से ना आए. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि टायर्स और इसको हम यहाँ पे पास कर देते हैं इंट tr टायर्स इक्वल टू tr. तो ये काम हम पेरेंट के अंदर से कर सकते हैं बिकॉज विद इन पेरेंट वी कैन है डायरेक्टली एक्सेस दिस टायर्स. ठीक है. हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन चाइल्ड के अंदर बिकॉज ऑफ इट्स प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते. तो यहाँ पे हम जब ये कंडीशंस वगैरह सारे क्रॉस चेक कर लें तो यहाँ पे हम चूंकि इस चीज को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, सो इंस्टेड ऑफ दैट हम यहाँ पे ये जो हमने एक एक्स्ट्रा फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, विल जस्ट कॉल दिस फंक्शन. मजबूरी ये है कि हम टायर्स हमें डायरेक्टली, ये टायर जो है ये मेंबर है कार के क्लास का, लेकिन
ये डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकता। सो टू सेट इट्स वैल्यू हम ये फंक्शन यूज करेंगे और उसको हम ये t की वैल्यू पास कर देंगे और इस तरह से हम इनडायरेक्टली इसको मॉडिफाई कर देंगे। तो बेसिकली ये जो सेट टायर का फंक्शन है ये डिफाइंड है कार के अंदर। कार के अंदर हमने अपनी कंडीशंस जो है वो चेक कर ली कि ठीक है कार के इतने टायर्स हो सकते हैं, और उसके बाद हमने क्या किया, अपडेट का फंक्शन कॉल किया और वो अपडेट का फंक्शन जो है वो हमें बेसिकली ये काम करके देगा। अगर वैल्यू इसके मुताबिक नहीं है तो ये हमें एरर दे देगा। तो अब अगर आप देखें तो अपडेट हम पेरेंट के अंदर से ही कर रहे हैं, लेकिन कंडीशंस हमने अपने चाइल्ड के रिलेटेड लगाए हैं। मतलब दीज कंडीशंस कुड बी अपडेटेड अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड क्लास। फॉर एग्जांपल एक कार के जो टायर्स हैं वो 4 से कम नहीं हो सकते, तो हमने अपडेट हम कर रहे हैं थ्रू पेरेंट लेकिन कंडीशंस यहाँ पे हमने चाइल्ड वाली सेट की हुई हैं, क्योंकि a car cannot have tires less than 4। द सेम वे हम इस तरह से एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं स्कूटर के लिए और उसमें हम ये वैल्यू डिफरेंट रखेंगे, ये कंडीशन स्कूटर के लिए डिफरेंट होगी। तो मेन जो अपडेशन है वो पेरेंट के अंदर से हो रही है, लेकिन स्कूटर अपनी कंडीशन के मुताबिक चेंज कर रहा है और कार अपनी कंडीशन के मुताबिक चेंज कर रहा है। सर हम यहाँ पे वो सुपर नहीं लगा सकते, सुपर डबल ऑपरेटर पेयर उसके बाद टायर इक्वल टू टी? हाँ हाँ एग्जैक्टली वो भी लगा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, वो हम लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसके साथ लगा दूं अभी सुपर नहीं, उसका नाम व्हीकल है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कॉल कर दूं, ठीक है, सो इसको मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो ये जो व्हीकल और एक्सेस, ये जो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है, ये आप लगाएं या ना लगाएं, व्हेन यू आर कॉलिंग अ पेरेंट क्लास फंक्शन विद इन अ चाइल्ड क्लास, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। इसको हम इसलिए जनरली अवॉइड करते हैं। इसको लगाना कब जरूरी है, जब हमारे पास ओवरराइडिंग हो, ठीक है। ओवरराइडिंग में अब आप क्लियर, अभी अगर मैं इस फंक्शन के अंदर लिख दूं, यहाँ पे मैं अगर इस फंक्शन के अंदर, ये मैं सिर्फ आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ कि इस फंक्शन के अंदर से अगर मैं लिख लूं सेट टायर्स, ठीक है, इंट 3 ले में भी, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या पता चल रहा है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, अगर सेट टायर्स का फंक्शन जो है ये मेरा यहाँ पे भी है और पेरेंट के अंदर भी है, ठीक है। तो अब मुझे ये नहीं कंपाइलर को क्लियर हो रहा कि ये मैं पेरेंट वाला कॉल कर रहा हूँ या ये मैं यहाँ पे रिकर्जन अप्लाई कर रहा हूँ। समझ आ रही है बात की? यस सर। तो जब आपके पास ओवरराइडिंग हो, पेरेंट और चाइल्ड दोनों के बीच में एक ही नाम का फंक्शन हो, फिर ये चीज लगाना बड़ी जरूरी है कि ये मैं किस फंक्शन की बात कर रहा हूँ, बिकॉज दे बोथ हैव द सेम नेम। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं पेरेंट का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ या मैं यहाँ पे ये वाला कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये चीज बताना बड़ी जरूरी है। लेकिन अगर नाम मुख्तलिफ हो तो फिर हम बताते नहीं है, यानी इनडायरेक्टली इसका मतलब वही है कि हम यहाँ पे व्हीकल ये इनडायरेक्टली, लेकिन चूंकि ना लिखने से कोई मसला नहीं बन रहा, बिकॉज वी जस्ट हैव दिस फंक्शन ओनली डिफाइंड इन द पेरेंट, वो कंफ्यूजन नहीं है, तो अब इसलिए हम जनरली इसको लिखने से अवॉइड करते हैं। जब आपके पास फंक्शन एक नाम का हो फिर इसका लिखना लाजमी होगा, बिकॉज दैट इज गोइंग टू डिफरेंशिएट कि आप पेरेंट वाला कॉल कर रहे हैं या यहाँ पे रिकर्जन अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है जी? यस सर। अच्छा, यही है आज के लेक्चर के लिए। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो बता दें। नो सर। सर ये लेक्चर अपलोड कर दे जी सर, यूट्यूब पे अपलोड कर दे सर। हाँ हाँ, ये मैं अपलोड कर दूंगा। और हमने क्लासेस की इम्प्लीमेंटेशन देखी हुई थी। आज का मेन मकसद ये था कि थोड़ा सा ब्रेक के बाद ये रिफ्रेश हो जाएं और हम इनहेरिटेंस की जो मेन जो कीवर्ड्स हैं, जो हमने पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप जो है उनके बीच में एस्टेब्लिश करने के लिए यूज करना है, उसको डिफाइन कर लें। और इसके बाद भी हमारे आगे लेक्चर्स इनहेरिटेंस के ऊपर होंगे, जिसमें हम फर्दर इसको और एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, सरताज मुझे अटेंडेंस पे ईमेल कर दें। ओके जी, सर ये पेपर किस टाइप का होगा? कोड। वो सर ठीक वो है, ड्राई रन पेपर पे हम लिखेंगे कि नहीं लैपटॉप वगैरह? नहीं पेपर पे ऑब्वियसली। यस। ठीक है, कुछ यस थोड़े सर। बहुत क्वेश्चंस हो सकते हैं थ्योरेटिकल, जो आपको ब्रीफली चीजों को एक्सप्लेन करना होगा, लेकिन ज्यादातर काम जो है वो कोड का होगा। और सर पेपर ऑन कैंपस से कि नहीं ऑनलाइन होंगे? पेपर ये तो एकेडमिक्स आपको बताएगा, लेकिन मेरे ख्याल में ऑनलाइन होंगे। फाइनल वही आपको बता सकते हैं।
ओके सर। ठीक है। थैंक यू। देखिए मेन आपका काम जो है वो कोडिंग से रिलेटेड होगा, तो उसकी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो टेक्स्ट या आपके मतलब थ्योरी वाले हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत ब्रीफ क्वेश्चन होंगे, कोई लंबी चौड़ी कहानियां नहीं होंगी उसमें। इसी तरह से होगा कि लेट से अगर इस क्लास के अंदर मैं ये फंक्शन एक्सेस कर सकता हूं तो क्यों नहीं कर सकता, कर सकता हूं तो क्यों कर सकता हूं। तो इस तरह के कुछ जो है चीजों को एक्सप्लेन करने के रिलेटेड जो है वो हो सकते हैं। ठीक है। ओवरराइडिंग जो है, क्या उसमें ये चीज हो सकती है, इनहेरिटेंस के अंदर क्या ये काम हो सकता है, तो वो आप 2-3 लाइंस के अंदर उसका जवाब आप लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, कुछ में आपको कोड लिखना पड़ेगा। ओके सर। ओके जी, ठीक है, थैंक यू। मुझे अटेंडेंस फिर भेज दें।